Hello everyone, good morning. How are you? All of you are doing well. Hope that your family and you are safe at home. Okay. So today what we'll study is जो भी हमने last I just tell you the lesson plan or the today's plan of this the plan of this lecture. आज हम क्या करेंगे पहले तो last time जो भी हमने किया उसका एक quick recap करेंगे जो भी हमने पढ़ा last lecture में or then I'll tell you how you can memorize the formulas that we have learned. Okay, all that we studied in the last class, I'll tell you how to exactly remember them. Okay, and then we'll solve a few questions based on those formulas. Okay, so be ready with a pen and your notebook. Okay, मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करिए. चाहे तो आप मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बाद कुछ 10-20 सेकेंड्स आप खुद सोच सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए. ओके, this is very good practice to do, to study in the class itself. When I was in my engineering, so I had scored throughout. My score was like above 75%. जबकि मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग में distinction होता है above 67%. So I was like well above distinction. And the way I used to study, even my batch, my this stream which I had chosen, mechanical engineering, ये engineering की सबसे toughest stream होती है, core stream होती है. फिर भी I managed to bag the toppers medal in my college throughout the 4 years. Okay, I'll tell you how I did it. जब भी मेरे classes होते थे, I would solve and prepare for my exam in my classes itself. कि 60% आपकी पढ़ाई आपके क्लास में ही हो जाती है अगर आप सिंसियरली सॉल्व करते हो तो. So I would just study during my classes and then I would study in my PLs. So this is what I would do and this is what would get me marks. तो मैं बीच में कभी पढ़ाई नहीं करता था. Of course, this should not be your practice for your 12th class. You should study consistently throughout. लेकिन what I'm telling is the gravity of being attentive and taking your classes seriously. ठीक है, so try to solve in the classes itself. 60% of your study will be done in your lectures itself. Okay, so let us start. तो ये लास्ट लेक्चर के कुछ प्रीव्यूज है. तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री 1 में क्या क्या फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने. ये कुछ आइडेंटिटीज थी, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो अपने 10th क्लास में भी स्टडी किए थे, राइट. फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कैसे फंक्शंस आते हैं, कंपेयरिंग इट टू राइट एंगल ट्रायंगल. फिर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी, ये हेक्सागन डायग्राम. ना मैं लिखता हूँ हेक्सागन, ठीक है. और इससे हम लोग बहुत कुछ डिराइव कर पाते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डायग्राम. इट इज वेरी इजी एंड वेरी हैंडी इन एग्जाम. तो प्लीज ट्राई टू मग दिस अप, दिस होल डायग्राम, और इससे कैसे आइडेंटिटीज आते हैं. ओके, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड we saw all the compound angles formula. We started the trigonometry part 2. तो एक कुछ 6 formulas हमने देखे है ना compound angles से. I'll tell you how to memorize these. बहुत ही simple logic है, उससे आप ये याद रख सकते हो. और फिर हमने derive किए वो formulas, right. One by one we derived those compound angle formulas. So this is a big proof. Okay, for first, second, third, fourth, fifth, sixth. और फिर हमने देखा conjugates, sorry, complementary angles. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देते हैं. ओके, विल सी हाउ टू रिमेंबर दिस आल्सो. ये 6 चीजें. व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज इफ यू गिव योर 100%, आज ये क्लास में आपके ये सारे फॉर्मूलाज जो यहाँ तक लिखे हुए हैं सारे याद हो जाएंगे. ओके, एंड यू विल रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर लाइफ if you just give your 100% and being attentive. Okay, so let us start with the tricks how to memorize these formulas. Okay, तो सबसे पहले हम कंपाउंड एंगल से शुरू करते हैं. ठीक है, देखो बहुत ही इजी है.
I'll write it in red ink. पहला तो फॉर्मूला है cos A माइनस B का, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे याद रखते हैं, cos A माइनस B है मतलब पहले cos A आएगा फिर cos B आएगा, ठीक है। cos है मतलब सब कुछ उसे पहले ही चाहिए, वो पहले साइन को नहीं देगा कुछ भी, ओके। तो पहले cos A cos B, फिर जो cos है सो ये बहुत टेढ़ा होता है, तो अगर यहाँ माइनस साइन है ना तो वो प्लस ले लेगा, ओके। तो प्लस फिर बाद में सब कुछ साइन को दे देगा, साइन A साइन B, ठीक है। वैसे ही और cos A प्लस B क्या आएगा, cos A cos B सब कुछ पहले चाहिए उसको, साइन भी बदल देगा, माइनस आ जाएगा फिर साइन को दे देगा, साइन A साइन B, ओके। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो है वो वैसा नहीं, ओके। विल सी फॉर साइन, साइन A माइनस B, साइन सब कुछ बांट बांट के देता है, और साइन ये जो बीच वाली साइन है वो भी नहीं बदलता, ठीक है। तो साइन कहता है कि पहले साइन A फिर cos को भी दे देंगे तो cos B, है ना, साइन भी वही रखेंगे, फिर cos A sin B, okay. I hope this logic makes it easy for you to remember, okay. So then sin A plus B का देखते हैं, so sin A cos B आएगा, sin B वही रहेगा पॉजिटिव, और फिर cos A sin B, okay. So by this logic you can remember these four formulas, right? And what I want you to know by now is that देखो ये आपको पता होना ही चाहिए, हमने किया था कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा तो पॉजिटिव आता है, और अब जब tan के लिए करने जाओगे tan ऑफ नेगेटिव थीटा, सो इट इज नथिंग बट साइन ऑफ नेगेटिव थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा is nothing but minus sin theta upon positive cos theta, which is nothing but minus of tan theta. तो tan भी जो अंदर साइन है वो अब्सॉर्ब नहीं करता है, बाहर लाके रख देता है, ओके। सो आई वांट यू टू नो दिस थिंग, ये बहुत ही बेसिक चीज है, सॉरी। ओके, ये आपको बहुत हैंडी होगी बाकी सारे फॉर्मूलाज डिराइव करने के लिए, ओके। साइन बी रेज हो गया, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, ओके। तो अभी देखते हैं और कौन से हमने देखे थे। तो अभी tan का है, कह दिए tan का जो फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं। tan भी बहुत इजी है, so when they are given tan of a plus b, तो सिंपल है, हम लोग पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, tan of a प्लस tan of b, ठीक है। फिर अपॉन लेंगे 1, यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस लेंगे, और फिर दोनों का प्रोडक्ट tan of a मल्टीप्लाइड बाय tan of b, ठीक है। वैसे ही वही सेम लॉजिक tan of a माइनस b के लिए क्या आएगा, tan of a माइनस tan of b होल डिवाइडेड बाय 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, tan of a मल्टीप्लाइड बाय tan of b, ओके। सो आई होप यू रिमेम्बर दीज फॉर्मूलाज। लेकिन रुकिए, अभी यहाँ पे सिर्फ इतना करने से आपको ये फॉर्मूलाज फॉर लाइफ टाइम याद नहीं रहेंगे। द बेसिक स्टेप इज यू हैव टू सॉल्व समथिंग रिगार्डिंग टू दिस, ओके। सी देखो, बहुत ही नेचुरल साइंस है, मुझे पता नहीं आपने कितने बुक्स पढ़े हैं, बट व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू रीड दिस बुक्स कॉल्ड महाभारत, रामायण, भगवद गीता, ये सब मैं पढ़ता था। वन थिंग आई अंडरस्टूड इज, उसमें अगर आप लिटरेचर राइटिंग स्टाइल देखोगे तो पहले व्यास देव है वो लिखते हैं, अगर वो ऐसे चीज लिखे कि कृष्णा इज यू नो भक्तवत्सल है, वो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो तुरंत उसके बाद वो एक पास टाइम लिखेंगे कि कैसे कृष्ण ने अपने भक्तों की सहायता की थी when they were in trying situation, when they were in difficult situations. So whenever they give a siddhant, they back up it with इतिहास, that is whenever they give a principle, they back up it with
an evidence or a story regarding to it। तो वैसे ही मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में आप याद कर लोगे, लेकिन वो रीइंफोर्स एकदम स्ट्रांगली सीमेंट होने के लिए आपको उसके लिए उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करने होंगे। ओके, सो विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्जुगेट कैसे याद रखने। ओके, जो सॉरी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वो कैसे याद रखने। सो विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। I just switch over to a new page। तो यहाँ मैं ऊपर टाइटल लिख लेता हूँ कि questions for, or I should write based on compound angle formula। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। ओके, सो लेट मी राइट इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, तो पहले मैं आपको फंक्शन लिख देता हूँ। द फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस बी यहाँ यूज करने वाले हैं हम। तो क्या होगा, cos को सब कुछ पहले खुद के लिए चाहिए, तो cos ऑफ a cos ऑफ b, साइन भी बदल देता है, तो पॉजिटिव साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ठीक है, तो देखो अभी सॉल्व करते हैं। ये cos ऑफ 15 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ cos ऑफ 45 माइनस 30, है ना, वही होता है cos ऑफ 15। तो अभी यहाँ पे 45 a है, 30 इज b, राइट। तो चलो इसको एक्सपांड करते हैं। व्हाट वी गेट इज cos ऑफ 45 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 30, साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव आएगी, साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30। ओके, तो cos 45 कितना होता है। अभी आई एक्सपेक्ट यू टू नो दीज वैल्यूज एटलीस्ट, कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 क्या होता है। आई कैन नॉट ऑलवेज राइट डाउन द टेबल। ओके, सो यू मस्ट मेमोराइज दिस, और एटलीस्ट इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, आप एक टेबल बनाओ, और जब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस होंगी तो टेबल साथ में रखो, ताकि रेफरेंस के लिए तुरंत आपको दिख जाए। ओके, तो cos 45 होता है 1 डिवाइड बाय रूट 2, cos 30 होता है रूट 3 बाय 2। ओके, प्लस sin 45 होता है 1 डिवाइड बाय रूट 2, और sin 30 होता है हाफ। ओके, तो ये कितना होगा, रूट 3 बाय 2 रूट 2, राइट, और यहाँ पे होगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2। ओके, तो इनके तो डिनोमिनेटर्स कॉमन ही है, तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम कॉमन लिख लेते हैं। सॉरी, रूट 3, oh god, so this is root 3, this is root 2, और ये 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2। ओके, और आगे इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही अपना फाइनल आंसर है। ओके, सो cos ऑफ 15 डिग्री इज रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2। ओके, सो इसको एक अच्छा सा बॉक्स बना लेते हैं। ओके, दैट्स आवर आंसर। I will move towards our question 2। Okay, so question 2 में देखिए, question 2 में पूछा है find the value of tan of 13 pi divided by 12। ये रेडियन में, ओके, डिग्री नहीं। ओके,
हालांकि उन्होंने अगर ये c नहीं दिया होता, इट इज स्टिल अंडरस्टूड दैट इट इज रेडियन. ओके, सो द सॉल्यूशन. तो इसमें हम लोग कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं मैं पहले लिख देता हूँ कंपाउंड एंगल्स के. सो वी आर गोइंग टू यूज tan ऑफ, I don't know, perhaps a plus b पहले यूज करेंगे, which is tan of a plus tan of b, right? ब्रैकेट्स खोलने हैं और ये साइन चेंज करनी है, 1 माइनस प्रोडक्ट tan of a multiplied by tan of b, and perhaps we'll use the second one also, tan of a minus b, which is nothing but tan of a minus tan of b whole divided by 1 minus 1 plus, साइन चेंज हो जाएगी, tan of a multiplied by tan of b. See, I'm purposely writing whenever we are solving, मैं purposely formulas blue में लिख रहा हूँ अभी, ताकि आप भी ऐसी आदत डाल लो कि जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, every time, even though you remember it, okay, have this habit of writing the formulas, okay, while solving the sum. चाहे आप देख के लिखिए फॉर्मूलाज, लेकिन इससे याद जल्दी हो जाएंगे जब आप सॉल्व करते समय ऐसे लिखते हो. ओके, बिकॉज यू आर यूजिंग इट. ओके, सो नाउ I'll write tan of 13 pi divided by 12. I'll split it as tan of pi plus pi by 12, है ना. देखो पाई यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 13 पाई बाय 12 मिलेगा. सो आई हैव जस्ट रिटन द सेम थिंग. तो यहाँ पे this is our a, this is our b, and we are going to use which one, the first one. तो यहाँ पे we'll use 1. okay, I'll name this as 1, name this as 2. ठीक है. so tan of pi plus tan of pi by 12 whole divided by 1 minus tan of pi into tan of pi by 12. okay, fine. so now हमें पता है यहाँ पे tan of pi की वैल्यू हमें पता है, tan of pi by 12 की नहीं पता है. ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट पैनिक, करेंगे हम उसको भी सॉल्व करेंगे. सो tan of pi की वैल्यू पता है हमें, हाउ मच इज इट, इट इज 0. ओके, सो पाई हमेशा रिपीट होता है, tan हमेशा इट्स पीरियड इज 5 पाई, सो हर पाई के बाद tan जो है रिपीट होगा. सो tan का पीरियड होता है पाई. तो tan अगर 0, tan 0 पे क्या होता है, 0 होता है, tan 0 इज 0. तो उसके बाद tan पाई पे क्या वैल्यू आएगी, 0. फिर उसके बाद tan ऑफ 2 पाई पे क्या आएगी वैल्यू, 0. 3 पाई पे 0. क्यों, क्योंकि उसका पीरियड पाई है, मतलब हर पाई के बाद tan अपनी वैल्यू रिपीट करेगा इन इट्स कर्व, राइट. सो नाउ tan पाई इज 0 प्लस, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं तो वही लिख देते हैं, tan पाई बाय 12, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस, ये तो 0 तो पूरा ये चीज 0 हो जाएगा, है ना. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0. सो वी गेट tan ऑफ पाई बाय 12 डिवाइड बाय 1 नहीं लिखते, ओके, इट इज वन एंड द सेम थिंग. Now what we'll do is we'll write tan of pi by 12 in this fashion, tan of pi by 4 minus pi by 6. ओके, आपको ऐसा लगेगा मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन यू नो आफ्टर मेकिंग इट अ हैबिट, अब जब बार बार सॉल्व करोगे बहुत सारी चीजें, you'll get to know कि ऐसे कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं. ओके, you'll get the whole अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप लोग स्प्लिट कर सकते हो और
ए और बी कैसे मोस्ट फेवरेबल कैसे निकाल सकते हो। बेसिकली वी नो दीज थिंग्स कि हमें 0 का पता होता है, π/3 का पता होता है, π/4 का पता होता है, π/6 का पता होता है वैल्यूज, और फिर π/2 का पता होता है। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन में हमको ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है, इधर प्लस करो या माइनस करो। सो विल गेट इट आफ्टर आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, बस यहीं पे नहीं सॉल्व करेंगे, यू कैन सॉल्व इट when I give you assignments. Apart from that also you can personally do your self study. Okay, तो यहाँ हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे अभी, the second formula. Okay, use the second one, ये tan of a minus b. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, tan of a minus tan of b डिवाइड बाय 1, अभी यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस है, तो प्रोडक्ट दैट इज tan of a into tan of b. ठीक है, तो अभी tan π/4 और tan π/6 के वैल्यूज हमें पता है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक टेबल बना लो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इन फंक्शंस के साथ क्या क्या वैल्यू देता है, और साथ में रेफरेंस के लिए रखो। ओके, तो tan ऑफ पाई होता है tan ऑफ π/4 होता है 1 माइनस tan ऑफ π/6 होता है 1 डिवाइड बाय √3। tan ऑफ 30 है अपॉन 1 प्लस ये है 1 और 1 डिवाइड बाय √3। ओके, so what we have is 1 minus 1 divided by √3 divided by 1 plus 1 divided by √3। अभी हम लोग यहाँ आंसर छोड़ देंगे तो चलेगा क्या, आंसर तो राइट है लेकिन इनकम्प्लीट है ना, क्यों ना हम इसको कंप्लीट करें, have rational thing. Okay, so what we have is √3 minus 1 divided by √3। यहाँ पे 1 को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 करेंगे। So then what we have is √3 divided by plus 1 whole divided by √3। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा। What we would finally have is √3 minus 1 divided by √3 plus 1। Okay, so this is our answer. So I'll just write tan of 13 pi by 12 radian is equal to √3 minus 1 upon √3 plus 1. Okay, so this is our final answer. Hope you're understanding all the explanations. बहुत easy sums है। Okay, so let's move towards the next question. थोड़ी जगह बनाते हैं क्वेश्चंस के लिए। Okay, I think this should be sufficient. ठीक है, क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। अभी एक प्रूफ करते हैं। ओके, इसमें 2-3 फॉर्मूलाज यूज करेंगे। So what we have to prove is that sine of x plus y divided by sine of x minus y is equal to tan of x plus tan of y whole divided by tan of x minus tan of y. Okay, so let's try and prove this. तो यहाँ पे बहुत एविडेंटली दिख रहा है, अगर हम LHS से सॉल्व करेंगे हमें 2 फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। फर्स्ट वन इज साइन ऑफ a प्लस b। इसका क्या होगा, देखो साइन सब कुछ शेयर करता है, तो दोनों एंगल्स पहले शेयर करेंगे, साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, और बहुत होना है तो साइन भी पॉजिटिव ही रहेंगी, जो यहाँ पे साइन है वही वो यहाँ पे होता है, एंड देन cos of a sin of b।
ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा, साइन ऑफ a माइनस b, which becomes sin a cos b minus cos a sin b। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज हमें यूज करना है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम LHS। ओके, तो LHS में आप देखोगे तो x बनेगा अपना a, y बनेगा b, राइट। तो इसको एक्सपांड करते हैं, साइन ऑफ x cos ऑफ y प्लस cos ऑफ x साइन ऑफ y, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x साइन ऑफ y। ठीक है, तो एक बार देख लो कि हमारा गोल क्या है, हमें tan तक जाना है, सब कुछ tan में चाहिए, है ना, और हमारे पास है साइन कॉस में। तो बेसिकली व्हाट विल डू इज डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। ठीक है, सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। ओके, दोनों से कर देंगे ताकि अगर cos है कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन है उसका tan हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव इज sin of x cos of y divided by cos x cos y plus cos of x sin of y divided by cos x cos y। ये बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में sin x cos y divided by cos x cos y minus cos x sin y divided by cos x cos y। ठीक है, तो अभी कैंसिल आउट कर लेते हैं। Okay, so what we can cancel out is cos y cos y, cos x cos x, cos y cos y, cos x cos x। So what we have finally is sin by cos is tan, तो ऊपर बनेगा tan x plus sin y by cos y is tan y, right? I hope you know this, that tan is equal to sin upon cos। Okay, ये आपको पता होना जरूरी है। डिवाइडेड बाय यहाँ बचेगा tan x minus tan y। okay, so now if you look carefully, यही तो हमें चाहिए था, that is equal to RHS, right? So this is our RHS and hence I can write proved। okay, अभी next ट्राई करते हैं। Question 4। okay, now what I want you to do is, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज करिए 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, ट्राई इट ऑन योरसेल्फ कि आपको सब कुछ याद है क्या, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो क्या। ओके, and then you can again resume, I'll be giving the solution also। okay, so the question is, show that tan of 3x multiplied by tan of 2x multiplied by tan of x is equal to tan of 3x minus tan of 2x minus tan of x। okay, ये हमें प्रूव करना है। so you can pause the video now and you can try it for yourself, और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं, you can keep watching। okay, so let us solve। ठीक है, तो सबसे पहले
write proof. Okay, we'll start with this. We'll split tan of 3x as tan of 2x plus x. Okay, 2x plus x ऐसे split करते हैं. Let me just write this properly. Okay, तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. tan of a plus b क्या होता है? tan of a plus tan of b होल डिवाइड बाय 1. ये प्लस है तो माइनस tan of a tan of b, राइट? तो क्या मिलेगा हमें? tan of 3x is equal to tan of 2x plus tan of x whole divided by 1 minus tan of 2x into tan of x, right? What we'll do is हम लोग ये denominator जो है we'll take it to the this side, left hand side of it. तो क्या मिलेगा? tan of 3x multiplied by 1 minus tan of 2x into tan of x, okay, is equal to tan of 2x plus tan of x. Let us scroll down. Next step what we'll do is ये tan of 3x अंदर multiply कर लेते हैं. So what we have is tan of 3x minus tan of 3x multiplied by tan of 2x multiplied by tan of x is equal to tan of 2x plus tan of x. Okay, दिख रहा है आपको सोल्यूशन? अभी थोड़ा सा फोर साइड से देखोगे तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड व्हाट वी वांट. ओके, ये जो पार्ट है, ग्रीन पेन से आपको दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है यू टेक इट टू दिस साइड. ओके, और ये जो पार्ट है ना यू टेक इट ऑन दिस साइड, तो हमें अपना सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके, सो व्हाट वी गेट इज tan of 3x minus tan of 2x minus tan of x is equal to, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये साइड में, tan of 3x multiplied by tan of 2x multiplied by tan of x. ओके, देखा, बहुत इजी सम था. एक्चुअली पहले हम अगर देखते थे तो कैसे प्रूव करें, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो कैसे करें, बहुत it was looking complex. But as soon as we opened it using this compound angle formula, it was just like one step far. The solution was just one step far, right? So these compound angle formulas makes your life very easy. Okay, when it comes to trigonometry. Okay, let's move ahead and we'll solve one more question. Question 5 of today. So question 5 says, show that cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x is equal to root 2 times cos x. आपको देख के ही पता लग गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है चीख चीख क्या कह रहा है कि आप कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, राइट? So we'll just write what we are going to use. We'll use this one,
cos ऑफ a प्लस b कहाँ यूज करेंगे? देखो यहाँ पे cos ऑफ a cos ऑफ b साइन चेंज करो, साइन ऑफ a साइन ऑफ b, ठीक है। और कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे we'll use cos of a minus b which is cos of a cos of b साइन चेंज हो जाएगा प्लस साइन ऑफ a साइन ऑफ b, ठीक है। तो कर लेते हैं हम लोग एक्सपांड। प्रूफ LHS एक बार लिख लेते हैं LHS cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x, ठीक है, जिसमें ये है a, दिस इज b, यहाँ पे है ये a, दिस इज b, ठीक है। तो मैं पूरा एट स्ट्रेच लिखता हूँ, प्लीज डोंट लूज द रिलेटिविटी। पहले मैं क्लोज ब्रैकेट में बॉक्स ब्रैकेट में इसका लिखूंगा, फिर बॉक्स ब्रैकेट में इसका लिखूंगा, ओके। सो cos of pi by 4 multiplied by cos of x minus sin of pi by 4 sin of x, ओके, प्लस दूसरा वाला cos of pi by 4 cos of x प्लस साइन चेंज हो जाएगा sin of pi by 4 sin of x, right? So we know what is cos of pi by 4, what is sin of pi by 4, it is 1 by root 2। तो क्या मिलेगा हमें? 1 डिवाइड बाय रूट 2 टाइम्स cos x माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 टाइम्स sin x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 टाइम्स cos x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 टाइम्स sin x। तो क्या है? देखो ये जो ब्रैकेट है प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, और क्या बचता है हमारे पास? 1 डिवाइड बाय रूट 2 ऑफ cos x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 ऑफ cos x। तो क्या बन जाएगा ये? cos x plus cos x divided by root 2, that is nothing but 2 times cos x divided by root 2। और आपको अगर ये चीज पता हो that root 2 multiplied by root 2 is equal to 2, तो ये चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं। so what answer we get is root 2 times cos x, right? कैसे? ये 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ root 2 times root 2 cos x divided by root 2। तो ये root 2 कैंसिल और root 2 cos x बचेगा। If you see carefully, that is our right hand side, okay, so I'll just write is equal to right hand side, and at the end the cherry, hence proved, okay। I hope this is a clear cut explanation, ठीक है, इसमें कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, and very lucidly I have presented everything, and you must be understanding all the subtleties of this proof, okay। So let us go towards the next question, okay। So now we are going to solve our question 6th of the lecture, question 6th। question 6 क्या है? If tan a minus tan b, tan a minus tan b
इज इक्वल टू x, ये दिया गया है, ओके गिवन। एंड ये भी दिया है कि cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y, ओके। और फिर पूछा है कि देन शो दैट cot of a minus b is equal to 1 by x plus 1 by y, ओके ये पूछा है। तो आई लाइक टू टेल यू वन थिंग कि देखो ये प्रूफ्स जो है ना, ये बस ऐसे नहीं कि आपको बोर्ड्स में यूज होंगे इसके, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हो सकते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन देख लो, मैं आपको अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखता कि ये सेम गिवन डेटा है और सिर्फ शो दैट नहीं, देन मैं अगर ऐसे लिखता कि cot ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और मैं अगर आपको ऐसे ऑप्शंस देता a x प्लस वाई, b है 1 बाय x प्लस वाई, c है 1 प्लस 1 बाय y और d है 1 बाय x प्लस 1 बाय y, ठीक है ना। तो ये MCQ बन गया, ओके। तो आपको सेम चीज यूज करनी है, सेम फॉर्मूलाज यूज करने हैं, एंड यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, दैट इज ऑप्शन डी। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में आपको बोर्ड्स में इजी करके दिया है, दैट दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड यू टू प्रूव, राइट। So I'll just write then you have to prove that 1 by x cot a minus b is 1 by x plus 1 by y, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और if you get it good, if you don't get it excellent, I'm there for you, I'll show you how to do it, okay। Proof, first of all I'll write I'll use what is given to us, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ cot b minus cot a is equal to y, आई होप मैंने ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन में, yes cot b minus cot a और tan a minus tan, ओके। तो ये दिया है, and you must be knowing this thing that cot is a reciprocal function of tan, तो ये मैं यूज करूंगा यहाँ पे, I'll write it as 1 by tan b minus 1 by tan a is equal to y। और अभी क्या करेंगे, बहुत ऑब्वियस है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो ये साइड को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बाय tan a and this side I'll multiply and divide by tan b, so what I get is tan a minus tan b whole divided by tan a tan b, right, is equal to y। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, we are going to use this, okay। and the next thing we know is tan a minus tan b is equal to x, ये दूसरा इक्वेशन जो हमें ध्यान में रखना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, cot of a minus b, राइट। तो cot को 1 by tan लिख सकते हैं, so it becomes 1 divided by tan of a minus b, ओके। और tan of a minus b का फॉर्मूला क्या है, tan of a minus b is ब्रैकेट्स ओपन करो, tan of a minus tan of b डिवाइड बाय 1, साइन चेंज करो, प्लस प्रोडक्ट लेना है tan of a tan of b, ओके। तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली यही है a, यही है b, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, अभी दे वांट 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ a माइनस b, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, सो व्हाट वी गेट इज 1 प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b होल डिवाइड बाय
tan of a minus tan of b. ओके, तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग यूज करने वाले, तो क्या करेंगे हम, ये भी स्प्लिट करते हैं, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे. सो 1 बाय tan of a minus tan of b प्लस tan of a tan of b divided by tan of a minus tan of b, राइट. अभी इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, ये देखो, ये यहाँ पे जो है ये है x tan of a minus tan of b, और ये यहाँ पे जो है ये है 1 by y, है ना, रेसिप्रोकल है y का, ठीक है. सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, using 1 and 2 we get this is equal to 1 by x plus 1 by y. यही तो हमें फाइंड आउट करना था. cot of a minus b is equal to 1 of x minus 1 by x plus 1 by y, ठीक है. So hence we have proved it, hence proved, right. Now what we'll do is we'll solve a few questions जो कंपाउंड एंगल से है. I'll just make some place. प्रूफ्स नहीं करेंगे, थोड़ा फाइंड आउट वैल्यूज जैसे क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट विल डू साइन ऑफ 15, cos ऑफ 15 की तरह ही है ना, सेम. सो आई विल स्प्लिट इट अप एज 45 minus 30, right. I want you to do it. Okay, you can pause the video, write the formulas and try to do it by yourself. So sin of a minus b is sin a cos b minus cos a sin b, ठीक है. तो क्या बनेगा, sin of 15 बनेगा sin 45 sin 30 minus, I'm sorry, cos है, cos 30 minus sin 30 cos 45. तो सबके वैल्यूज नोन है हमें. sin 45 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, sin 30 is half, and this is also 1 by root 2. okay, तो क्या मिला, root 3 by 2 root 2 minus 1 divided by 2 root 2. okay, so final answer will be root 3 minus 1 divided by 2 root 2. This is answer for sin 15. okay, तो इसमें और cos 15 में क्या डिफरेंस था, cos में सिर्फ पॉजिटिव साइन थी, I guess. yes, so it was root 3 plus 1 and this is root 3 minus 1, right. Let's solve one more. okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, we'll solve for tan, ठीक है. so let us solve for tan 105. okay, so आप स्प्लिट कैसे करोगे, थोड़ा सोचिए. okay, pause the video, think for a while, try to solve it, और फिर बाद में मैं सॉल्व कर देता हूँ. ओके, ठीक है, चलो. so I'll split it as tan of 60 plus 45.
है ना। देखो आप 90 से करोगे 90 तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, लेकिन 15 की tan की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि वो tan की वैल्यू होती है 15 पे, लेकिन स्टैंडर्ड्स तो यही है, वी नो वैल्यूज फॉर 0, 30, 45, 60, 90, तो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन से 105 हमें बनाना है, सो इट इज 60 plus 45, right? I'll just write the formula. We are going to use tan of a plus b is equal to tan of a plus tan of b whole divided by 1, साइन चेंज करो, माइनस प्रोडक्ट लिखो, tan of a into tan of b. Okay, so let us use this. इसमें ये है a, ये है b, so our tan of 105 becomes tan of 60 plus tan of 45 whole divided by 1 minus tan of 60 into tan of 45. So we know value of tan of 60 and tan of 45. Tan 60 क्या होता है, √3, tan of 45 होता है 1. Okay, so it is √3 plus 1 divided by 1 minus, this is 1, tan 45 and tan 60 is √3. तो इसको मैं थोड़ा, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 plus 1 डिवाइड बाय 1 minus √3, और थोड़ा सा to write it in a good way, I can write it as 1 plus √3 divided by 1 minus √3. Okay, so that's our answer for tan 105. Okay, so that's it. I believe इतने सम्स काफ़ी है आपको formulas याद होने के लिए. So we have solved almost 6. This one is 7th और ये है 8th क्वेश्चन. ओके, कुछ आपको असाइनमेंट्स के लिए भी दूंगा, कुछ आप खुद से भी सॉल्व कीजिए. जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस खुद से, उतना अच्छे से प्रैक्टिस होके फॉर्मूलाज उतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा. ओके, तो एक क्विक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज. हमने पहले तो देखा कि फॉर्मूलाज याद कैसे रखने, है ना, तो ये बेसिक था, ये हमें पता होना चाहिए, इससे सब माइनस के भी फॉर्मूलाज आते हैं. और आज कंपाउंड एंगल्स के हमने देखे, हाउ टू रिमेम्बर. सो वी सॉ cos of a minus b, so this was cos of a minus b and cos of a plus b. तो इनको कैसे याद रखना है हमने देखा. sin of a minus b, sin of a plus b, इसको भी tan of a plus b, tan of a minus b, ये भी देखा. और फिर हमने देखे कुछ questions, how to use these 6 things, these 6 formulas. So this was cos of a minus b. तो कुछ बेसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यूज किया साइन, कॉस, टैन. फिर कुछ प्रूफ्स किए यूजिंग द सेम फॉर्मूलास, राइट. एंड अगेन हमने वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज यूज किए. आई होप दिस वाज अ प्रोडक्टिव क्लास एंड यू हैव लर्नड हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज ऑफ compound angles. Okay, in next class we'll see how to use the formula for complementary angles and how to remember these formulas of complementary angles. Okay, that's it for today. Thank you very much.